हेलो हेलो hello everyone, welcome to the SciFly chemistry. So in this session we are going to start a new chapter, that is acid base chemistry. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एसिड बेस के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उतना पोर्शन हम कवर करेंगे ताकि आपको भी ज्यादा कुछ डिटेल में और जगह पे रीड करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है. सो गिव द हेडिंग एसिड बेस केमिस्ट्री. Give the heading acid base chemistry. अब ये एसिड बेस केमिस्ट्री है, ये हम इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं. ऑर्गेनिक में आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके वैल्यू, के वैल्यूज, ये आपने बहुत सारा सुना होगा. और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से ज़्यादा एसिडिक है, कौन से बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड से एसिडिटी की ऑर्डर आपको ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी वो एडजस्ट करनी होती है, उनके ऑर्डर लगानी होती है. तो वो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू है. इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या देखेंगे, वेरियस थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस केमिस्ट्री, जैसे कि अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी फॉर द एसिड बेस, लेविस एसिड बेस थ्योरी, ये सारी जो थ्योरी है वो इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे. ठीक है. सो जस्ट गिव द हेडिंग. So the very first theory is Arrhenius acid base theory. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Arrhenius acid base theory. So according to Arrhenius acid base theory, acid is that substance which releases H plus in aqueous medium. So acid is that substance which releases H plus ion in aqueous medium, and base is that substance which releases OH minus ion in aqueous solution. ठीक है ना. According to the Arrhenius theory of acid and base, acid gives H plus and base gives OH minus ion in aqueous solution. So here aqueous medium is important. In Arrhenius theory of acid and base, aqueous medium is necessary. Aqueous medium is required. ठीक है. तो सपोज H plus ion है, HCl है. in water HCl it dissociate into H plus CS minus, but this is aqueous H plus aqueous Cl minus. तो आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि HCl plus H2O, so H plus with water it form H3O plus here it is. अब H plus कहाँ गया, वाटर के साथ गया, तो कौन रिमेनिंग है, Cl minus aqueous. So this is known as a hydronium ion. So H plus in aqueous medium, H plus with water is called as hydronium ion. It is called as hydronium ion. H plus H2O is nothing but hydronium ion, right? अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि जो H प्लस रिलीज हुआ था वो एक्वियस मीडियम में रिलीज हुआ है. एंड अरेनियस एसिड के थ्योरी के अकॉर्डिंगली द सब्सटेंस विच रिलीजेस H प्लस इन एक्वियस मीडियम इज कॉल्ड एज एसिड, और हाइड्रोनियम आयन वहां पे कंपल्सरी फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी. समझ रहे हो. अब बेस है सपोज NaOH प्लस वाटर, सो Na प्लस aqueous and OH minus in aqueous medium. So here the OH minus is released. ठीक है. अब देखो ये है अरेनियस थ्योरी जहां पे हम बात कर रहे हैं H प्लस की एंड OH माइनस की. दूसरी जो थ्योरी है ना, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, उसमें हम सिर्फ H प्लस की बात करेंगे. एसिड इज अ दैट सब्सटेंस विच रिलीजेस H प्लस, बेस इज अ दैट सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द H प्लस, राइट. तो ये हम बाद में देखेंगे, अभी कंपैरिजन के लिए आपको बता दिया. तो बस थोड़ा सा लिख लो. अब मैं जो भी बोलूंगी आपको लिखते रहना है. ठीक है. हर एक बात मैं बोर्ड के ऊपर लिख के नहीं दूंगी,
आपको वो लिखते जाना है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। So see here, Arrhenius theory of acid base, you got this. Now the next point is acid base neutralization reaction. Acid base neutralization reaction. So what is the neutralization reaction? So take one acid, take one base. Now what happen? Acid cation react with base anion and they will form H plus and OH minus. They are going to form water. Now acid anion react with this base cation and they form NaCl. Now this NaCl contain Na plus and Cl minus. The compound which contain cation other than hydrogen H plus, anion other than OH minus, that is called as a salt. This is called as a salt, right? And this is water. So the reaction in which salt and water are formed as a product, that reaction is called as a neutralization reaction. So in this reaction, water plus salt, they are formed as a products, and that is why the reaction is called as a neutralization reaction. In this is Arrhenius acid and this is Arrhenius base. Okay, so neutralization reaction is clear to you. Now ये जो H2O तैयार हुआ है ना, H2O में से H प्लस डिराइव हुआ है एसिड से एंड OH माइनस डिराइव हुआ है बेस से, तो उसी का मतलब क्या है? दिस H2O contain H plus and OH minus ion. So this is the self ionization of water. This is self ionization of water. और हमेशा याद रखना, this proton never exist alone, never exist alone. तो अगर आपका मीडियम वाटर है, so this H plus will get combined with another water molecule and it will form H3O plus, that is hydronium ion. तो जब भी आपको H प्लस दिख रहा है ना, तो उसको सिंगल नहीं लिखना है. अगर मीडियम वाटर है तो उसका हाइड्रोनियम आयन तैयार करके आपको प्रोडक्ट में लिखना है. ठीक है, क्लियर है सबको? नाउ एप्लीकेशंस ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट. अब ये अरेनियस कॉन्सेप्ट हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? Applications of Arrhenius concept. Applications of Arrhenius concept. So write down the first application. Very important application, that aqueous solution of metal oxide. They are basic in nature, and aqueous solution of non-metallic oxide, they are acidic in nature. So how? Metal oxide, take any example. For example, sodium oxide, when it react with water, means it's का aqueous solution हमने लिया. Sodium plus it react with OH minus and form NaOH, sodium hydroxide, which is a base. और रिमेनिंग क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. सो अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, जस्ट वेट, Na2O and H2O. NaOH is formed and again water molecule is formed. Yes, NaOH is formed and water molecule is formed. अगर सिर्फ मेटल है ना, सोडियम, एंड व्हेन दिस सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, ओनली मेटल, नॉट ऑक्साइड, ठीक है ना, ओनली मेटल, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बट इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, ओनली मेटल. सो व्हाई द सोडियम इज नॉट kept in air, moist air? So the reason is that it absorbs the moisture from air and releases hydrogen gas, which is explosive. That is why it can catch the fire, and so the sodium is kept in kerosene or any other non-reactive reagent, right? So
यहाँ पे अभी क्या तैयार हुआ है, बेस तैयार हुआ है। वैसे ही आप कोई भी मेटल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसका एक्वियस सॉल्यूशन है देन इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अगेन बेस। अब ऐसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल मतलब सल्फर है तो SO3 आप ले सकते हो। नॉन मेटल का मतलब और कौन है, फॉस्फोरस है, सो P2O4 ले सकते हो आप। और कौन कौन से है, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, सो यू कैन टेक CO2, you can take N2O4, all these are non-metal. So suppose SO3, its aqueous solution, it produces H2SO4 which is sulfuric acid, so the solution is acidic in nature. P2O4 कोई भी फॉस्फोरस का ऑक्साइड अगर आप लेते हो, अब प्रपोर्शन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट फॉस्फोरस ऑक्साइड इन सम प्रपोर्शन रिएक्शन विथ वाटर इट विल फॉर्म H2PO3 फॉस्फोरिक एसिड। CO2 है, CO2 प्लस H2O इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, नाम लिखते जाओ आप, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। N2O4 नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ वाटर इट इज गोइंग टू फॉर्म HNO3। सो सारे के सारे ये क्या है, एसिड है। कहाँ से डिराइव हुए, नॉन मेटल के ऑक्साइड से डिराइव हुए, समझ रहे हो। और ये अरेनियस थ्योरी कैसे शो कर रहा है, क्योंकि ये जो एसिड्स है दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस H+ आयन एंड ये जो बेसेस है दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस OH- आयन, दैट इज व्हाई दीज आर बेसेस एंड दीज आर एसिड्स। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैसे निकाली जाती है, एसिड की स्ट्रेंथ। सपोज कोई एसिड आपको दिया है जिसमें H+ प्रेजेंट है और A- प्रेजेंट है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम एरो, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस H+ एंड A-। सो Ka is a constant which is used to determine strength of acid. More is the value of Ka, the acid strength is more. Ka formula is concentration of product, that is H+ and A- divided by concentration of reactant, that is Ha. इस तरीके से Ka की वैल्यू निकाली जाती है। मतलब क्या हुआ, H+ का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी और उतनी ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी। मतलब जितना ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, H+ आयन रिलीज करेगा, उतनी ज्यादा इस एसिड की स्ट्रेंथ है। सो मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड। वैसे ही Kb की वैल्यू भी निकाली जाती है। अब यहाँ पे OH- आयन है, so I will write here, suppose I will write here BOH, so B plus OH-, and the base strength is written as Kb is equal to concentration of product B+ and OH- divided by concentration of reactant, that is BOH, and the constant is Kb. More is the value of Kb, more is the strength of base. ठीक है, so note down these 2 points. अब हम आएंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की तरफ, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की तरफ। So let us start with the Bronsted-Lowry acid base theory. अब Bronsted-Lowry में क्या होता है, acid is a substance which release H+ ion and base is a substance which accept the H+ ion. अब यहाँ पे मीडियम की कोई बात नहीं है, सो मीडियम कैन बी वाटर, एक्वियस और इट कैन बी नॉन एक्वियस मीडियम, ठीक है ना। So acid is having a tendency to lose hydrogen ion and base is having tendency to gain the hydrogen ion, right? So there is no need of only water as a medium.
मीडियम कैन बी एनीथिंग, राइट। सो नाउ जनरल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? जनरल रिएक्शन ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस की। सो सपोज हियर water and HNO3, these two substances are present. So see, HNO3 is acid, we know it releases H plus ion, and H2O is acting as a base which accept this H plus ion. तो H2O का कन्वर्जन आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस H plus होने वाला है H3O plus में, एंड HNO3 after losing this H plus it will form NO3 minus ion. तो HNO3 अगर एसिड है तो उसने H plus रिलीज करने के बाद जो NO3 माइनस बचा है उसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का हमेशा होता है कॉन्जुगेट बेस। पहले H2O क्या था? बेस था। अब बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट दिस H प्लस। तो बेस ने H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो तैयार हुआ उसे बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। तो ये अगर बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये अगर एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। समझ रहे हो आप? सो HNO3 H प्लस रिलीज करेगा, वाटर H प्लस एक्सेप्ट करेगा, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म H3O प्लस आयन। तो HNO3 एसिड है, H3O प्लस क्या होगा? सॉरी, HNO3 एसिड है तो NO3 माइनस होगा कॉन्जुगेट बेस। H2O अगर बेस है तो H3O प्लस होगा कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है। समझ रहे हो? ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे फॉर्म हुए हैं, राइट। तो एसिड ने H प्लस रिलीज करने के बाद जो NO3 माइनस बचा है उसे बोला है हमने कॉन्जुगेट बेस। बेस ने H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो आयन तैयार हुआ उसे हमने बोला है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अभी मैंने बहुत बार ये स्टेटमेंट रिपीट किया है क्योंकि इसका यूज हमें आगे होने वाला है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शंस। सो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम कॉन्जुगेट एसिड बेस रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे। उससे पहले सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन अभी नाम से ही आपको पता चला होगा व्हाट इज दिस सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन क्या है देखो। सो सी, अब कुछ एक तो पहले वाटर का ही एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज देयर आर टू वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O, एक ही सॉल्वेंट है, राइट। वन H2O विल रिलीज H प्लस, वन H2O विल रिलीज H प्लस एंड दिस विल एक्सेप्ट H प्लस। तो ये बन गया H3O प्लस, ठीक है ना। अब H3O प्लस इसने H प्लस रिलीज किया है तो ये क्या बचा? OH माइनस, OH माइनस। तो सपोज इसने H प्लस रिलीज किया है और OH माइनस बचा है, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है और H3O प्लस फॉर्म हुआ है। सो H2O हैज रिलीज H प्लस, सो दिस इज एसिड, ये हुआ एसिड। इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है तो ये हुआ बेस। अब इसने एसिड ने H प्लस रिलीज करने के बाद OH माइनस बनाया है, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब इस H2O ने क्या किया? H प्लस एक्सेप्ट किया
और H3O+ बनाया, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड। बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये बेस है और इसका ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ये एसिड है और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट। अब इसे नंबरिंग कैसे किया जाता है, ये एसिड 1 अगर है ना, एसिड 1, तो ये जो है ना ये कॉन्जुगेट बेस 1 होगा, ये बेस अगर 2 है तो ये कॉन्जुगेट एसिड 2 होगा, राइट। एसिड को 1 नंबर दिया, बेस को 2 नंबर दिया, तो एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसे भी 1 नंबर दो और बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसे भी 2 नंबर दो। डन। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इन दिस रिएक्शन विच इज अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो H2O H3O+ और H2O OH-। अब यहाँ पे सेम ही है, दोनों H2O है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस बाद में ऐसे आएंगे कि ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स होंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम सेल्फ आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। सो दिस रिएक्शन इज कंबाइनली रिटर्न एज 2H2O इक्विलिब्रियम एरो H3O+ प्लस OH-। ये हुई वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पे जो कैटायन है ना, दैट इज एसिड कैटायन, इसको बोला जाता है एसिड कैटायन। अगर सपोज यहाँ पे आपने HCl लिया है और H2SO4 लिया है, अब देखो वी विल स्टार्ट 1 by 1, ये पहले लिख लो, मैं आपको चार्ट लिख के देती हूँ। सो सी, लेट अस स्टार्ट विथ H2SO4। H2SO4, अगर आप 2 H2SO4 ले रहे हो, सो 1 विल रिलीज H+ और यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, H3SO4+। सपोज यहाँ से H+ रिलीज होके यहाँ पे आया है, तो ये बन गया H3O+, ये है हमारा एसिड और ये बन गया उसका कॉन्जुगेट बेस, राइट। अब इसने एक्सेप्ट किया ना, तो ये बेस हुआ, सॉरी ये एसिड है, चलो इस एसिड ने H+ रिलीज किया, तो इसके पास बचा क्या है, HSO4-, क्योंकि एक H+ तो चला गया। एसिड अगर ये है तो ये है उसका कॉन्जुगेट बेस। सपोज इन दोनों को हम 1 नंबर देते हैं। अब इसने H+ एक्सेप्ट किया है, ये बेस है, इसे 2 नंबर दिया मैंने, ये बेस है। अब बेस ने H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या तैयार हुआ, H3SO4+, तो ये हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड। अब इसे भी मैं 2 नंबर देती हूँ, ठीक है। सो पेयर देखो यहाँ पे, पेयर कौन सी फॉर्म हुई, एसिड कॉन्जुगेट बेस। दिस पेयर इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दिस पेयर H2SO4 एसिड, HSO4- conjugate base, and pair of these two species is called as a conjugate acid base pair. Pair of these two species is called as conjugate acid base pair, right? अब ये सेल्फ आयोनाइजेशन है, यानी कि सेम सॉल्वेंट अपने ही दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो दिस इज अ सेल्फ आयोनाइजेशन, राइट। सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शंस। सो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट क्या है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट आर दोज विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें सपोज यहाँ पे वाटर था, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा था, एक बेस की तरह। जिसने एसिड की तरह एक्ट किया उसने OH- बनाया, जिसने बेस की तरह एक्ट किया उसने H+ एक्सेप्ट करके H3O+ बनाया। सो इन दिस केस दिस वाटर इज एक्टिंग एज अ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। वैसे ही H2SO4 की रिएक्शन हमने देखी थी, एक H2SO4 ने H+ रिलीज करके HSO4- बनाया और दूसरे ने एक्सेप्ट करके H3SO4+ बनाया। तो एसिड भी है, बेस भी है, सो दे आर एम्फोटेरिक सॉल्वेंट एंड दिस कैटायन इज कॉल्ड एज अ एसिड कैटायन। ये जो सारे कैटायन तैयार हुए हैं ना, दीज आर एसिड कैटायन। और जो
बेस तैयार हुए हैं, दे आर एसिड बेसेस। सो दीज आर एसिड, दे आर एसिड अनायन, दीज आर एसिड कैटायन एंड दीज आर एसिड अनायन। ओके, ये एसिड कैटायन है और ये एसिड अनायन है, सारे के सारे। इस चार्ट में जो भी कैटायन आपको दिखेंगे वो एसिड कैटायन है, जो भी अनायन दिखेंगे वो एसिड अनायन है, राइट। सो ये सारे क्योंकि मैं एसिड के एग्जांपल दे रही हूँ आपको। HF ये भी एसिड है, H2O हो गया हमारा एसिडिक एसिड, CH3COOH। नेक्स्ट इज मिथेनॉल, CH3OH। नेक्स्ट इज अमोनिया, अब ये बेस हो गया, राइट, CH3CN। तो सबके 2-2 मोल्स लिए हैं मैंने। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखो 2 HF है, मैं इसे इलेबोरेट करके लिखती हूँ, HF प्लस HF, वन विल रिलीज H प्लस एंड ओनली फॉर्म F माइनस। दूसरे ने क्या फॉर्म किया, HF प्लस H प्लस, ये होता है H2F प्लस। ठीक है, अब देखो फर्दर इसकी रिएक्शन कैसे होती है। अगर फर्दर 1 मोर HF के साथ ये रिएक्ट करता है, 2 HF मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो गई, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, इफ इट रिएक्ट विथ 1 मोर HF मॉलिक्यूल देन दिस F माइनस कंबाइन विथ न्यू HF एंड इट फॉर्म HF। अब क्या है, 2 फ्लोरीन हो गए। नेगेटिव चार्ज जब ऐड होता है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जब ऐड होता है H2F तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो HF2, सो दिस HF हैज कंबाइंड विथ दिस F माइनस, और बाकी क्या है, बाकी है H2F प्लस। तो 3 मोल अगर हम HF के यूज करते हैं, 1, 2 और ये 3rd, तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे HF2 माइनस एंड H2F प्लस, राइट। ध्यान से आपको रिएक्शंस देखने हैं सारे। एसिटिक एसिड, सपोज 1 एसिटिक एसिड ने H प्लस रिलीज किया तो उसने फॉर्म किया है CH3COO माइनस। दूसरे ने एक्सेप्ट किया है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, CH3COOH2 प्लस। मिथेनॉल है, एक ने H प्लस रिलीज किया सो CH3O माइनस, दूसरे ने एक्सेप्ट किया सो दिस विल बी CH3OH2 प्लस। NH3, एक ने H प्लस रिलीज किया सो NH2 माइनस, दूसरे ने एक्सेप्ट किया NH4 प्लस। CH3CN, एक ने H प्लस रिलीज किया सो CH2CN माइनस, और ये फॉर्म हुआ C। अब कैसे लिखे इसको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसने H प्लस जो था वो रिलीज किया था सो CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमें ये कैसे लिखना पड़ेगा, देखो CH3CN है ना, CH2CN माइनस, ये तो ठीक है, बट H प्लस एक्सेप्ट कौन करेगा, H प्लस एक्सेप्ट, हाँ तो H प्लस यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, NH प्लस तैयार होगा। सो दिस विल बी CH3CNH प्लस। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, याद रखना, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, क्योंकि कार्बन तो H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए आइदर लोन पेयर चाहिए आपके पास, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, सो नाइट्रोजन H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए मैंने ये NH प्लस ऐसा लिखा है, राइट। ठीक है, डन। अब देखो मोनोप्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं, मोनोप्रोटिक acids, which are monoprotic acids which can release only 1 proton. For example, CH3COOH. This is monoprotic acid. HCl is a monoprotic acid. This can release only 1 H plus. Now, what is diprotic acid? Diprotic acid. Diprotic acid. So, oxalic acid. COOH. Oxalic acid, it can release this H plus as well as this H plus. H2SO4, this can release these 2 hydrogens. So they are diprotic, or commonly diprotic, triprotic, इनको मिला के polyprotic acids ऐसा भी बोला जाता है, right? So triprotic अगर आपको देखना है, triprotic, तो उसमें क्या आएगा,
H3PO4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, P डबल बॉन्ड O OH, 2 ऑक्सीजन हो गए, 3rd ऑक्सीजन एंड 4th ऑक्सीजन. सो दीज 3 H प्लस कैन बी रिलीज्ड. सो दिस इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड. समझ रहे हो? H3PO4 ऐसा स्ट्रक्चर होता है. These 3 H प्लस कैन बी रिलीज्ड एंड दैट इज वाई इट इज अ ट्राइप्रोटिक. और कॉमनली डाई, ट्राई, टेट्रा अगर है तो उनको पॉलीप्रोटिक एसिड बोला जाता है. नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है. सो जो अरेनियस एसिड्स है ना, सारे के सारे जो अरेनियस एसिड्स है विच आर रिलीजिंग H प्लस आयन इन एक्वियस मीडियम, दे आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड. क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के लिए एसिड की डेफिनेशन सेम है, इट विल रिलीज H प्लस, बट देर इज नो कंडीशन ऑफ मीडियम. कौन सा भी मीडियम हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है. सो ऑल द अरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, बट नॉट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर अरेनियस एसिड. क्योंकि अरेनियस के लिए मीडियम तो सिर्फ वाटर चाहिए, ठीक है. समझ रहे हो? ओके, नोट इट डाउन. सो और एक बात आपको यहाँ पे बताती हूँ. सपोज पहली रिएक्शन हम कर रहे हैं जिसमें वाटर इज रिएक्टिंग विथ अमोनिया, और दूसरी रिएक्शन है जिसमें वाटर इज रिएक्टिंग विथ HCl, राइट. तो इस केस में क्या होगा, सिंस दिस अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, तो यहाँ पे वाटर विल एक्ट एज अ एसिड बिकॉज अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, राइट. बेस का काम है H प्लस एक्सेप्ट करना, राइट. एसिड का काम है H प्लस रिलीज करना, तो यहाँ पे H प्लस रिलीज होगा, H2O विल कन्वर्ट इनटू OH माइनस, तो यह हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस. एसिड 1 है तो यह कॉन्जुगेट बेस 1 है. बेस का काम है H प्लस एक्सेप्ट करना, ये अगर बेस 2 है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड 2 बनेगा NH4 प्लस. सो इन दिस केस water is acting as an acid. water is acting as an acid. इस केस में देखो water से ज्यादा strong acid प्रेजेंट है HCl, this will act as acid, और इसके सामने water will act as a base, right. तो ये अगर बेस है तो इसका काम है H प्लस लेना, बेस 1.
H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये बनेगा H3O+, विच विल बी कॉन्जुगेट एसिड। इसे 1 नाम देती हूँ मैं। HCl एसिड है, ये H+ रिलीज कर रहा है, बाकी क्या रहेगा Cl-, और एसिड का होता है कॉन्जुगेट बेस। ये अगर इसे मैं 2 नंबर देती हूँ तो इसे भी मैं 2 नंबर दे रही हूँ, ठीक है। सो हियर वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, सो दिस वाटर इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। इट कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ बेस, ठीक है। समझ रहा है सबको? अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी। एप्लीकेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, ठीक है ना। सो देखो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी का पहला एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, अब ऑक्सी एसिड्स का मतलब है द प्रोटॉन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। ऐसा ग्रुप अगर आपको कहीं पे दिखता है दैट इज ऑक्सी एसिड ग्रुप, ओके। सो फर्स्ट वन HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Out of these four acids whose acidic strength is high and whose acidic strength is less. तो ये समझने के लिए पहली बात आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सो लेट मी टेल यू वन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अगर यहाँ पे आपका एसिड है, सपोज ये वाटर है ना, यही रिएक्शंस ले लो, ये एसिड है, वाटर, और यहाँ पे ये बेस है। सो सी इफ दिस बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इफ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। चलो अब NH3 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लिख के बताती हूँ। सो सी हमारे पास अभी HCl एक एसिड है और CH3COOH ये एक एसिड है। अब दोनों को मैं वाटर में डिजोल्व कर रही हूँ। एसिड का काम है H+ देना, तो ये Cl- बनाएगा, ये क्या बनाएगा CH3 C++O, O-। So see this, if this HCl is a strong acid then उसका कॉन्जुगेट बेस जो है ना वो वीक होगा, वीक बेस। देन Cl- इज अ वीक बेस, समझ रहे हो। एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ये जो बेस है ना इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो एसिडिक एसिड वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो बनता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका मतलब है Cl- इज अ वीक बेस। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो HF का एग्जाम्पल लो और HI का एग्जाम्पल लो। HF आफ्टर रिलीजिंग H+, so HI is a strong acid. HI is strong acid as compared to HF. HF is weak acid. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है वीक, दिस इज वीक बेस, और एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फिर से देखो HF, HCl, HBr, HI, top to the bottom, acidic strength of these hydra acid increases. HI strong acid है as compared to HF। तो HI अगर strong है तो I- वीक बेस है, और इसका रीजन है दिस नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज सरफेस एरिया, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन टू द H+, दैट इज वाई इट इज अ वीक बेस। सो HI क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF वीक है, क्यों? क्योंकि F- स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये जल्दी से H+ एक्सेप्ट करेगा और फिर से HF बनाएगा,
तो एसिड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, H प्लस रिलीज हो रहा है, जल्दी से H प्लस एक्सेप्ट हो रहा है, सो HF का ये जो आयोनाइजेशन होने की पावर है ये भी कम होगी, राइट, एज कंपेयर टू HI। तो समझ रहे हो, एसिड अगर वीक है तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। HClO ये किस तरीके से होता है, Cl ऑक्सी एसिड है, सो हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सी एसिड है ना, H। अब क्लोरीन पहले ड्रॉ करो, OH, उसके बाद 2 ऑक्सीजन बाकी है, 1 2, क्लोरीन है, एक OH ड्रॉ किया, 3 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं ड्रॉ करते हैं हम, 2 ही टोटल ऑक्सीजन से, यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन 1 2, ये क्लोरीन है, एक OH ग्रुप, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 4th ऑक्सीजन। सो सी, अब H प्लस रिलीज करने के बाद निगेटिव चार्ज कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो सपोज यहाँ पे H प्लस रिलीज होने के बाद ये निगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आएगा, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आएगा, ये निगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आएगा। अब ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो आफ्टर रिलीजिंग द H प्लस जहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो H प्लस जल्दी रिलीज होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो ये निगेटिव चार्ज आफ्टर रिलीजिंग H प्लस ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब ये H प्लस रिलीज होने देगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस HClO4 विल बी हाइएस्ट, then it comes HClO3, then it comes HClO2 and at the last it is HClO। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबल करने के लिए कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है, so it will not prefer to easily release this H plus and that is why the ClO minus HClO is weakly basic। अब दूसरा रीजन ये भी है, more is the number of oxygen atom, more is the acidic strength। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, so its acidic strength is high as compared to HClO3, HClO2 and HClO। so more is the number of oxygen atom, more is the acidic strength। ठीक है, so this is application of Bronsted-Lowry acid base theory। note it down। first one is वेरी मच एसिडिक, सो अगर ये ज़्यादा एसिडिक है सो pKa वैल्यू क्या होगी उसकी, लोएस्ट pKa, लो लिखने की जगह पे आई एम राइटिंग हियर लोएस्ट pKa वैल्यू एंड दिस विल हैव हाईएस्ट pKa वैल्यू, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, मोर एसिडिक लेस pKa वैल्यू। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये हाईएस्ट pKa मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, मोर एसिडिटी मोर Ka वैल्यू एंड लेस pKa वैल्यू। ठीक है, नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें।
अब दूसरा एप्लीकेशन देखो ब्रॉन्स्टेड-लोरे एसिड बेस का, राइट। द सेकंड एप्लीकेशन इज ब्रॉन्स्टेड-लोरे एसिडिटी ऑफ एक्वियस कैटायन, एक्वियस कैटायन। सेकंड एप्लीकेशन, ब्रॉन्स्टेड-लोरे एसिडिटी ऑफ एक्वियस कैटायन। तो एक रिएक्शन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, देखो एक्वियस कैटायन की FeH2O6 3+ FeH2O6 3+ with water molecule, it is forming FeH2O5 OH2+ प्लस H3O+। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, दिस आयरन विच इज प्रेजेंट इन वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज अटैच्ड विथ 6 वाटर मॉलिक्यूल। इसके जैसे 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल है। अब दिस इज अ वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, Fe3+। सो व्हाट हैपन, सो द इलेक्ट्रॉन पुल इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू आयरन, hydrogen to oxygen, and this H+ can be easily released. So this releases H+ from one of the water molecule. कोई भी एक water molecule है, यहाँ पे 5 water molecule as it is, और एक H2O ने H+ रिलीज किया और वो OH- में कन्वर्ट हुआ। H+ जो रिलीज किया था वो इस बाहर के एक्वियस वाटर मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया और उसने H3O+ बनाया। सो व्हाट्स द कंक्लूजन हियर, मेटल इन high oxidation state can polarize water ligand, and releases H+, मतलब act as acid. So the aqueous complex in which metal is present in high oxidation state can also act as a acid because H2O में से एक H+ जो है वो रिलीज होता है। H+ रिलीज होना इसी का मतलब क्या है, इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। ठीक है, समझ रहे हो किस तरीके से ये हुआ है। अब वही मैं बताती हूँ आपको कि Fe+3 अगर है, Fe+3 का कोई एक्वियस मॉलिक्यूल आपने बनाया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसकी Ka वैल्यू क्या होती है 6.7 × 10⁻³ अब वही Fe+2 का अगर कॉम्प्लेक्स है कम एसिडिक, कम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कम एसिडिक, सो Ka वैल्यू शुड बी लेस देन 6.7 × 10⁻³। सो फॉर Fe+2 द Ka वैल्यू इज 5 × 10⁻⁹ कम है ना, ये -3 है, ये -9 है, कम है वैल्यू। वही अगर क्रोमियम +3 की आप देखते हो तो उसकी वैल्यू 10⁻⁴ में आती है, मतलब Fe से थोड़ी कम हो गई, और एल्यूमिनियम +3 की और कम है, 10⁻⁵ में आती है। सो दीज आर सम Ka वैल्यूज। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई भी मेटल है विच आर हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसका एक्वियस सोल्यूशन आप ले रहे हो, मतलब इसके सराउंडिंग में n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, देन सारे के सारे H+ जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब इसका कन्वर्जन, और आप क्या कर रहे हो, और एक H+ मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हो। सपोज ये OH है ना, इसने भी क्या किया, H+ रिलीज किया, सो फाइनली OH- भी अगर H+ रिलीज करता है, सो O2- प्लस H+, इस तरीके का कुछ बनेगा, यानी कि फाइनली ऑक्साइड आयन बनेगा, राइट। ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है Fe+3 में, बट इफ मेटल इज प्रेजेंट इन +4 और +5 और +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट एग्जिस्ट इन वाटर एज अ मेटल ऑक्साइड, इट एग्जिस्ट इन वाटर एज अ मेटल ऑक्साइड। वो फाइनली मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि सारे H+ तो रिलीज होने वाले हैं, उसकी इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज ऑलवेज देयर ऑक्साइड आयन एग्जिस्ट। ठीक है ना, ऑक्साइड आयन के एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, जैसे कि CrO4-, MnO4-, क्रोमेट आयन, मैंगनेट आयन, वैनाडियम O4
वैनेडियम O4, वैनेडियम का कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी O2+, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -4, ये +5 आएगी, यहाँ पे -8 +7 आएगी, यहाँ पे ये -8, CrO4, CrO3 करो ये -6, यहाँ पे -6, ये माइनस है, सो इट विल बी +5, ठीक है। CrO4 भी चलेगा, O3 भी चलेगा। ये अगर -6 है तो यहाँ पे आना चाहिए +5, ये O4 अगर होगा तो और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। डन, ठीक है। सो द नेक्स्ट इफेक्ट इज लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, राइट। ये होने के बाद बताओ नेक्स्ट इफेक्ट हम लेते हैं। सो द नेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो सेकंड लेक्चर में हम एसिड एंड बेस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है।